Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester in subject Marketing Management. In this lecture, we have to discuss the pricing strategies, which is the most important topic in your subject. The topic is pricing strategies. So, you have to refer the page number 17, 1717. Unit number 3 and PDF page number 17. We will see the pricing strategies, and first one is the differential pricing. So what is differential pricing? You have to refer the notes which is given in your WhatsApp group. Differential pricing implies charging different prices from different customer for the same product. That means the different prices are to be charged from the different customer. That is the basic pricing strategy, which is called as the differential pricing. But the product is to be same, but it is to be slightly differentiate, and charge of that particular product is different from the different customer. But it is very difficult to charging such types of pricing, because customer can compare. So what is differential pricing? Differential pricing में different prices जो है अलग अलग कस्टमर से चार्ज करना फॉर दी सेम प्रोडक्ट, और मे बी अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट, या बहुत छोटा चेंज करके दी प्राइजेस हैज़ टू बी चार्ज. वो इसलिए किया जाता है कि जो कस्टमर चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिले, उनसे थोड़ी हाई प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है, और जो कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती उनसे थोड़ी कम प्राइस ली जाती है. लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज किया जाता है, थोड़ा सा जो है वो चाहे पैकिंग रहे या फिर कलर रहे, वो चेंज उसमें किया जाता है. सेकंड वन इज द प्रमोशनल प्राइसिंग. Name itself is called as the promotional pricing. So what is promotional pricing? It is the introductory price of that particular product. कि product is newly launched in the market. At that time the company has the strategy to fix the price of that product is as low as possible. और जब वो मार्केट में थोड़ा पॉपुलर हो जाएंगे, एट दैट टाइम कंपनी कैन रेज द प्राइस. बट initially the company is charging a very low price, which is called as the promotional price. And third one is the product line price. You have to refer the page number 19, that is the product line pricing. The product line pricing can be defined as the setting of prices of all the high price and low price product in the way that maximization of the profit. अब यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन प्राइस मीन्स, प्रोडक्ट लाइन मीन्स क्या है, हमने देखा था कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट जो है उसकी जो लाइन है, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, हैंड वॉश है, तो एक ही प्रकार की जो है उसकी प्राइस एक अलग रखना, और जो प्रोडक्ट लाइन दूसरी है उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी अलग रखना. ये डिफ्रेंशिएट इसलिए है कि जो कस्टमर ज़्यादा पे कर सकते हैं उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, और जो कस्टमर जो है वो कम पे कर सकते हैं उनसे कम प्राइस लेना. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, विच इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, विच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. एंड फोर्थ वन इज द, you have to refer the page number 4, which is called as the new product pricing. This is the very important in your syllabus, that the new product pricing. It is to be divided in two parts, A and B. New product pricing policy. A, price skimming, या जिसको बोल सकते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग. स्कीमिंग प्राइसिंग मीन्स ये होता है कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. इसके पहले हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्टरी स्टेज में द प्रोडक्ट शुड बी प्राइस एज लो एज पॉसिबल. लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइस स्कीमिंग में उसके उल्टा है कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, and if the new competitors enters in the market then lowering the price of that particular product. लेकिन
ये जो प्राइस स्कीमिंग है वो कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं कर सकती है। ये जनरली मल्टीनेशनल फर्म जो है इस प्रकार की स्ट्रेटेजी रखते हैं। क्यों? क्योंकि नई कंपनी है और प्रोडक्ट की प्राइस एकदम हाई रखा और लोगों ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो देर इज अ ह्यूज लॉसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो द मल्टीनेशनल फर्म is adopting this strategy, that is the scheming strategies. What is scheming strategies? The price should be as high as possible at the introduction stage, and if the new competitors enters in the market, at that time the price should be low. लेकिन ये हाई प्राइस कंपनी कब चार्ज करती है? जब प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन है, नयापन है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, समथिंग शुड बी एडेड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो है जिसकी गारंटी है कि वो हाई प्राइस से भी इंट्रोड्यूस किया तो कस्टमर उसको लेंगे ही। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब नया जब है वो तब। जब मोबाइल में भी देखो आप, जब नया आता है कुछ भी, दो सिम, एक सिम से दो सिम का हो गया तो शुरुआत में बहुत महंगे थे, लेकिन बाद में सभी कंपनी ने दो सिम देना चालू कर दिए तो प्राइजेस स्लाइटली रिड्यूस। बाद में तीन सिम जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया दे हैव टू चार्ज हाई प्राइस। सबने चालू किया, देन दे लोअरिंग दी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो यहाँ स्कीमिंग प्राइसिंग में इनिशियली जो है वो प्राइस ज़्यादा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि नया रहने की वजह से, समथिंग शुड बी न्यू, तो कंपनी जो है उस कंपनी मार्केट में का मैक्सिमम पैसा निकाल लेती है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेती है। और जब बाकी कंपनियां सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस और सोल्ड करना चालू कर देती है तो कंपनी अपनी प्राइस लो कर लेती है। उसी के अगेंस्ट इसमें का बी है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो यू हैव टू रेफर योर PDF कॉपी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्कीमिंग से बिल्कुल उल्टा है। पेनिट्रेशन में क्या होता है? इन पेनिट्रेशन प्राइसिंग द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इफ द प्रोडक्ट इज पॉपुलर इन द मार्केट द कंपनी कैन चार्ज द हाई प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब स्कीमिंग प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है? पेनिट्रेशन में ये हो रहा है कि at the time of introduction of that particular product the price of that particular product should be as low as possible, but if the product is popular in the market and gaining the reputation in market, at that time company charge the high price of that particular product, but initially company can charge the very low price। तो ये जो मार्केट में जो है मैक्सिमम जो है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का ही या स्ट्रेटजी का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शुरुआत में प्रोडक्ट की जो है वो कीमत कम रखी जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है एट दैट टाइम कंपनी कैन रेज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, यानी कस्टमर की साइकोलॉजी देख के प्राइसिंग फिक्स की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल जो है ₹99, देन 199, देन 999, यानी डिफरेंस कितना है? ₹1 का। कई बार तो ऐसा होता है कि जब चेंज नहीं होते तो ₹1 मिलता भी नहीं, लेकिन प्राइस प्रोडक्ट की 100 नहीं फिक्स की जाती, 99 फिक्स की जाती है। अब यहाँ पर डिफरेंस ₹1 का नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस जो है डिजिट का है। ये 2 डिजिट आंकड़ा है 99, और ये 100 जो है वो 3 डिजिट आंकड़ा। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है यहाँ। फ़र्क सिर्फ ₹1 का नहीं है, साइकोलॉजिकली वो बहुत फ़र्क है। ₹100 या ₹110 रखना और ₹99 रखना, इसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस जो है 999 रहती है, या 199 रहती है, या 99 रहती है, इस प्रकार की रहती है। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइस है कि इसका इम्पैक्ट जो है कस्टमर के ऊपर पड़े। कई बार जो है प्रोडक्ट पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, अब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिख लिया कि कस्टमर का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है कि इससे ज़्यादा वो प्राइस नहीं हो सकती। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, कस्टमर की साइकोलॉजी ध्यान में रखते हुए ये जो प्राइसिंग है ये तय की जाती है। उसके बाद में है नंबर 6 है अनएथिकल प्राइसिंग। सो व्हाट इज अनएथिकल प्राइसिंग? इन अनएथिकल प्राइसिंग जो सेलर्स है, द सेलर्स डिसाइड दैट वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप कर लेते हैं, दे हैव टू फिक्स द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सारे कॉम्पिटिटर्स मिलके एक हो जाते हैं एंड दे डिसाइड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब वो से ज़्यादा हो या कम हो, दे ऑल आर डिसाइडेड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड कस्टमर को वो पर्टिकुलर प्राइस उन्होंने जो फिक्स की है उससे कम में नहीं मिलेंगी, बिकॉज दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म प्राइसिंग। एट दैट टाइम
दी कस्टमर कैन नॉट डोमिनेट दैट पर्टिकुलर सेलर। कस्टमर अकेला जो है वो सेलर्स को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि दे फॉर्म अ यूनिटी एंड फ्रेम दी प्राइस। हो सकता है कि वो अनएथिकल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म अ यूनिटी एंड फॉर्म द सेम प्राइस ऑफ ऑल दी कॉम्पिटिटर्स। तो देर इज़ नो ऑप्शंस फॉर दी कस्टमर्स। अब यहाँ पर जो है वो कस्टमर्स के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है, और कोई भी ऑप्शंस नहीं रहने की वजह से जो प्राइस उनको कॉम्पिटिटर्स ने चार्ज की है वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में हमने देखा डिफरेंशियल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो इसका डिटेल है, डिटेल आपके व्हाट्सएप में जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। लेकिन इतना बेसिक जितना यहाँ पर आपने सुना उतना भी अगर ध्यान में रखेंगे तो डिस्क्रिप्शन पूरा के पूरा आपके समझ में आएगा। डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। सो दिस इज नॉट अ easy task. There are more legal complications is also there, but few companies are charged the differential pricing. Second one is the promotional pricing, which is called as the introductory price of that particular product. Then the product line pricing. Product line pricing means particular product line जो है उसकी सेम जो लगभग जो है आसपास से प्राइस चार्ज करना। देन न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग में हमने क्या देखा? उसमें दो टाइप हमने देखे। एक स्कीमिंग प्राइसिंग, मतलब at the time of introduction of that particular product, price should be as high as possible, and if the product is if the competitors enters in the market, at that time the price of that particular should be as low as possible. Then penetration pricing बिल्कुल opposite है skimming के। in penetration pricing, in introductory stage, the price of that particular product is as low as possible, and if the product is popular in the market, at that time the price should be as high as possible. एंड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर की साइकोलॉजी किस प्रकार की है उसको देख के प्रोडक्ट की प्राइस तय की जाती है। इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमको राउंड अप में कभी नहीं दिखती 10,000 या 1000, वो 999 दिखेंगी। 100 कभी नहीं दिखेंगी, ₹99 दिखेंगी, या कई बार 99.50 पैसा दिखेंगी, लेकिन 100 नहीं दिखेंगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। फ़र्क ₹1 का है, लेकिन साइकोलॉजिकली उसका बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ता है। उसके बाद में अनएथिकल प्राइसिंग। अनएथिकल प्राइसिंग क्या होता है? जब सब सेलर्स मिलके आपस में दे फॉर्म यूनिटी, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्राइस है इससे कम किसी ने भी नहीं बेचना, तो एट दैट टाइम वी विल कॉल्ड एज दी अनएथिकल प्राइसिंग। इसमें कस्टमर जो है वो अकेला कस्टमर या कस्टमर का मॉब जो है वो सेलर्स को डोमिनेट नहीं कर सकता लोअर प्राइस में गुड सोल्ड करने के लिए, बिकॉज दे फॉर्म अ यूनिटी। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक जो है आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छे से, इसका डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसको आपने अच्छे से पढ़ना, ताकि जो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली ये दो ध्यान में रखना कि स्कीमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट एज इन टुडेज मार्केट। ये दोनों प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केट में जो है अलग अलग प्रोड्यूसर जो है बहुत पैमाने पर जो है इसको अडॉप्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के हम इतना ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।